सही इस पूरे कवर होना है। IPR अवेयरनेस प्रोग्राम के उसमें जो मेरा प्रेजेंटेशन होगा वो बेसिकली बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, उसके जैसे एग्रीकल्चर में प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन को हम यूज़ करते हैं, कैसे हम IPR इश्यूज को मैनेज करते हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स को मैनेज करते हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा बर्निंग इशू है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन भी बनता है। तो एक छोटी सी टिप्स है उसके, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं उसको भी मैं थोड़ा टच करूँ। क्योंकि आप लोगों ने पहला सेशन किया हुआ है, इसलिए सरप्राइज क्विज बताइए, व्हाट इज IP? फर्स्ट पॉइंट में हाउ मेनी टेंजिबल, हाउ मेनी इनटेंजिबल? हाउ मेनी टेंजिबल वाले हाथ उठा दें। ओके, ये मत टेंजिबल, गुड। 2, आप लोग सुबह के लेक्चर में नहीं क्या करोगे? दोनों भी उठा सकते हैं क्या? Okay. So second aspect, intellectual property is a property or research output? Intellectual property is a property or research output? How many for property, how many for research output? बताइए। Property वाले अपना हाथ उठाएं। It's a property because the research output can be negative or positive, but ultimately we have to take positive results for this. IP, what do you consider? Property. How many go with her? How many go with her? How many say it's a property? रंजन तुम हाथ नीचे लो। Okay, so only 2 for property? मैं जवाब दूँ? अरे साथी, आपसे तो सब चीजें सीखी हैं। रिसर्च आउटपुट जो है वही है, जब उसको प्रोटेक्ट कर लोगे तो प्रॉपर्टी। But sir, research output can be negative or positive, depends on that result. नेगेटिव इज रिजल्ट की। But in negative things, I think it is for commercialization. No, I am talking about intellectual property. Yes, sir. If it is property from research output, how can it be negative? So that only I said, that is, it is property. It's not, I think. Okay. So, invented or discovery? Invented. Everyone for invented? Yes. चलिए गुड, बहुत अलर्ट रहे हैं। क्रिएटिविटी या सेरेंडिपिटी? Creativity. व्हाट इज सेरेंडिपिटी? That is suddenly, that cannot be sudden, I mean, sudden process not there. That is the result, complete procedure is there. So, how about serendipity? So serendipity is the by chance discovery. That reverse alert mind. Okay. So, coming to few basic definitions. I think Dr. Shukla has already covered this thing, tangible and intangible property. And a very logical saying by J.K. Rowling that imagination is the foundation of all inventions and innovations. So, invention and innovation. Again, what is invention? It refers to creation of something new and unique with one's own idea and everything.
inventor has created something new that has never been seen before, often owing the world with a wonder. क्या किया है? जो प्रोडक्ट आया है वो क्या करेगा, क्या करिश्मा होना है? That is something related to invention. Innovation, improvement, incremental improvement over the pre-existing. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर उसका इंक्रीमेंटल वैल्यू इंक्रीज करना, उसमें कुछ और एडिशन करना, दैट वुड बी टेकन एज इनोवेशन. एंड डिस्कवरी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट हैज नॉट बीन नोटिस्ड. तो लोगों ने पहले कभी उस चीज़ को ऑब्जर्व किया नहीं है, देख रहे हैं आम जीवन में हो रहा है, लेकिन उस नज़रिए से, उस स्पेसिफिक नज़रिए से उसको दिखा रही है, एक नया पॉइंट देते हुए चीज़ को, एग्जिस्टिंग चीज़ को बताना, दैट इज डिस्कवरी. एंड सो फॉर IPR इश्यूज, डिस्कवरी बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके लिए IPR इशू नहीं आता है. इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों के लिए IPR इश्यूज. Creativity, it involves stumbling upon something valuable, beneficial, meaningful, while not actively seeking or anticipating it. The magic happens when unrelated elements converge in a way that sparks creativity. बहुत सारी चीज़ें मिलके एक नई चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं. So that is new creation, something. So it is creative. And serendipity, it's a happy coincidence. This often leads to unexpected insight, opportunities, or creative breakthroughs. Again, very important person in science, Thomas Edison. To invent, you need to have good imagination and a pile of junk. आपके पास रिसोर्सेज तो होनी चाहिए, तब तो आप उसमें से कुछ नया क्रिएट करें. So finally, after terminology, IP is creation of mind. Creation of the mind, which is used in commerce. And creation can be in many ways. It can be innovation, it can be literary work, it can be artistic work, design, symbols, names, images, anything. But important thing is, if it has to be intellectual property, then it has to be of commercial value. Then only its sense of calling it a property. जायदाद है भाई, जायदाद बिना कीमत पे कैसे है? उसका कमर्शियल वैल्यू होना चाहिए. So what we need to know, कैसे सिचुएशन, कैसे कोई नया क्रिएशन कैसे आता है? आवश्यकता आविष्कार की जरूरत. पेटेंट जो अभी हम लोग ने पिछले कुछ वर्षों पहले कोविड देखा, उस कोविड से रिलेटेड जो पेटेंट्स को अगर हम सर्च करें, कोविड पे 170 पेटेंट्स हैं. कोविड पे SARS-CoV पे 60 है, कोरोना वायरस 230 है अक्रॉस द ग्लोब. इंडिया के पास नहीं, अक्रॉस द ग्लोब. सो कुछ नया चैलेंज आता है, उस नए चैलेंज से मोटिवेट होकर उसका सल्यूशन खोजा जाता है, और वो सल्यूशन खोजने की प्रक्रिया जो होती है उसमें कुछ नए इन्वेंशन होते हैं, और वो नया इन्वेंशन जो होता है वो सल्यूशंस प्रोवाइड करता है उस प्रॉब्लम की, और इसके बाद फिर जो प्रॉब्लम है उस सल्यूशन से मिटिगेट की. और ये आगे की प्रक्रिया है, दुनिया रुकती नहीं है, आगे नई समस्याएं आती रहेंगी, और हम लोग अगर जुझारू वैज्ञानिक हैं, सच्चे वैज्ञानिक हैं, तो समस्याओं से निपटते रहेंगे. Now, intellectual property ensures conducting
research without infringing upon rights others IP right. कुछ ऐसा करना है जिससे अपने साथी का किसी का नुकसान ना हो, अपने साथी का किसी का चोरी ना हो, ईमानदारी से अपना करेंगे, स्वाभिमान में हमारा भी कोई न ले सके, डिफेंड आवर ओन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टू डिफेंड कम्युनिटी एंड सॉवरेन राइट्स। कम्युनिटी के राइट्स को डिफेंड करना फर्ज है हमारा। सॉवरेन राइट मीन्स हमारे अपने कंट्री के हित हैं, कंट्री के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना, उस हिसाब से अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करना है, उस हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट करना है। जस्टिफाई सब्सटेंशियल कॉस्ट इंकर्ड इन R&D, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जितना भी पैसा लग रहा है, अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको हम जुडिशियसली यूज कर सकें और उसमें जो भी आउटपुट निकला है उसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हमको मिल सके। इसलिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होना, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सो इंटेलेक्चुअल possessing and showing mental capacity, property, any item owned by a person, entity and is inheritable. बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। दिमाग आपका है लेकिन वंशज नहीं खाएंगे इसकी वजह, इसलिए आगे के लोगों के लिए भी ये प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, इसलिए इसको प्रॉपर्टी का भी एक दर्जा है। आपने अगर बुक लिखी है तो उसकी रॉयल्टी आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती है। और राइट्स कैसे? इसका लीगल एंटाइटलमेंट है। एंड लीगल एंटाइटलमेंट केवल आपके कहने से नहीं कि आपने जो किया है, आपने जो कहा है वो लीगल है, सही है, ठीक है, लेकिन जब तक उसका आप लीगली रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वो आपके रिकॉर्ड में नहीं है। रजिस्ट्रेशन अगर किसी और ने करवा लिया तो उसके रिकॉर्ड में लीगली वो कुछ IP एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन का मायना नहीं है, पर्टिकुलरली कॉपीराइट इश्यूज जो है उसमें वंस यू हैव रिटन समथिंग, वंस यू हैव क्रिएटेड समथिंग, वो आपके प्रोटेक्शन में यूज हो सकता है लेकिन क्लेम कोई दूसरा कर नहीं सकता है। उसके बाद फिर अगर क्लेम कर लिया तो लड़ाई नहीं, इतनी फुर्सत कहाँ है। अच्छा है कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आप। प्रॉपर्टी तो है लेकिन प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कुछ डिफरेंसेस। प्रॉपर्टी को आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो आपकी ही है, यू कैन नॉट सेल किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू कैन नॉट बाय, इट कैन बी लाइसेंस्ड। यू कैन असाइन responsibility to someone, you can assign, delegate rights to someone, but in that situation also right will always remain with you and you cannot mortgage it. New developments can be taken. So property, it's a positive right that gives you freedom to use, sell, etc. But intellectual property, it's a negative right that deprives others from using. दूसरों पर रोकती है कि उस चीज को यूज नहीं करें। So this is a negative right. And in property, it's actual ownership right, not market driven. But intellectual property, it has to be of commercial use and it has to be market driven. So now, intellectual property and intellectual property rights. Intellectual property, there are various knowledge forms per se that are created. They are potentially exploitable knowledge assets. कोई भी infringe कर सकता है।
Now, how to protect them? We need to have rights over them. How do you take rights? Rights are legal instruments that protect IP holders' interest. अगर आपका IP है तो आप उसको रजिस्टर करवाइए, रजिस्टर करवाएंगे तो आपके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत सारे हैं, अलग अलग मोड है प्रोटेक्शन के। राइट, लीगल एक्सप्रेशन ऑफ द एसेट्स, वो आपका लीगल राइट होगा। और अक्रॉस द ग्लोब, ये जो मैप का ये लिखा है, बहुत सारे पेटेंट ऑफिसेज हैं, हर कंट्री में अपना वहाँ पर ये पेटेंट ऑफिस होता है। जो मेजर पेटेंट ऑफिस है उनको मैंने यहाँ पे पेटेंट किया। IP rights, they are of limited jurisdiction. They are territorial rights and temporal rights. What do you mean by territorial rights and temporal rights? Anyone? Can you guess what are territorial rights? Please come on. Territorial means particular area, specific area, and temporal I think broad area. Time के लिए certain time maybe. टेरिटोरियल राइट, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे पेटेंट के कंटेक्स्ट में, इंडिया में पेटेंट फाइल करना, अक्रॉस द कंट्री, कई जगह पे कई कंट्रीज में पेटेंट फाइल, पेटेंट जिस कंट्री में फाइल करेंगे वहीं के लिए ही बस वैलिड रहेगा। अगर यूएस में किसी ने पेटेंट फाइल किया हुआ है तो हम इंडियंस के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है कि उसके पेटेंट की हम इज्जत करें, प्रोटेक्ट करें। अगर वो इंडिया में पेटेंट फाइल होगा तो ही हमारे इंडियन टेरिटरी के ऊपर वो लॉ काम करेगा। यूएस का पेटेंट इंडिया में काम नहीं करेगा। इंडिया में अगर आप पेटेंट कर रहे हैं तो वो यूएस में, यूरोप में, जापान में, जर्मनी में कहीं काम नहीं करेगा। कोई भी फर्म अगर इंडियन कंटेक्स्ट में आपने पेटेंट फाइल किया, इंडियन टेरिटरी में पेटेंट फाइल किया है, तो उस पेटेंट की इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरी कंट्री में इजीली बिजनेस कर सकती है और वो कहीं पे भी इलीगल नहीं होगा, क्योंकि आपने उसका प्रोटेक्शन लिया ही नहीं दूसरी जगह। आपने केवल इंडिया का प्रोटेक्शन लिया है तो केवल इंडिया में ही आप बिजनेस को गवर्न कर सकते हैं उस चीज से, अपनी प्रॉपर्टी से। टेम्पोरल राइट्स, टाइम के दो कंसेप्ट हैं। एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है और दूसरा जिसने पहले फाइल कर दिया उसका, जिसकी एप्लीकेशन पहले जाएगी उसकी तरफ से वो ओनर बनेगा, चीजें डिसाइड होने पर। तो इसलिए ये टेरिटोरियल और टेम्पोरल राइट्स होते हैं, IP राइट्स। बहुत इस समय हर चीज मार्केट ड्रिवन चल रही है और पहले भी चलती रही है। इस समय इस चीज का मार्केट का ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट में चीजें ज़्यादा बढ़ रही हैं और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ नॉलेज ड्रिवन, डाटा ड्रिवन ज़्यादा हो रही है। और इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इंडियन मार्केट भी चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज करने के फेज में है। कैसे डिजिग्नेट करते हैं अलग अलग IPs, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए, पेटेंटेड आइटम के लिए। ट्रेडमार्क अगर TM बस लिखा है तो दैट इज अप्लाइड, नॉट येट ग्रांटेड। SM सिंबल मार्क है, इट इज ऑल्सो अप्लाइड, नॉट येट ग्रांटेड। अगर ग्रांट हो जाएगा तो वो R के साथ वो सिंबल है। तो ये अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं जो आप मार्केट में प्रोडक्ट्स देखते हैं, उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आपको ये सारे सिंबल्स दिखते होंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले के जो स्पीकर्स हैं उनमें चीज़ों को एलैबोरेट करके बताया है, अलग अलग IP और इंस्ट्रूमेंट्स को। ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल, उतना डिटेल तो नहीं होता है, लेकिन
रिवीजन करनी। आईपीआर कभी भी अकेले नहीं होता है, इट कम्स इन कॉम्बिनेशन। पिछले सेशन में डिस्कशन के पीरियड में संगीत सर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में है तो उसमें कई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वॉल्व। ये एक एग्जांपल है कार का जिसमें ट्रेडमार्क इन्वॉल्व है, पेटेंट इन्वॉल्व है, आईसी डिज़ाइन इन्वॉल्व है, डिज़ाइन इन्वॉल्व है, कॉपीराइट इन्वॉल्व है, बहुत मतलब कई आईपी इश्यूज इन्वॉल्व है किसी एक प्रोडक्ट के बाद। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सोलो बहुत कम यूज करते हैं, इन कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं। कमिंग टू ट्रेडमार्क, it's a sign capable of distinguishing goods and services of one enterprise from the other. आप निशान देख के समझ जाते हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है। It exclusively identifies the product as belonging to a specific company and recognizes company's ownership of the brand assured. आप क्वालिटी देख के बता देते हैं। जो केवल ट्रेडमार्क अगर आपने देखा है तो ट्रेडमार्क देख के आप जज कर लेते हैं, अच्छा ये टाटा की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है तो गोदरेज, गोदरेज में जिस हिसाब से वो गोदरेज लिखा है अपने आप में लोगों का भरोसा आ जाता है। ये एक भरोसा कंपनी ने कमाया हुआ है लोगों को वो प्रोडक्ट देके, और उस कंपनी के जो ट्रेडमार्क है उस ट्रेडमार्क को देख के लोग एश्योर्ड हो जाते हैं कि हाँ उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस मिलेगी इस चीज़ पे। इट कैन बी एनीथिंग if indicated the source of your good and services. It can be word, design, slogan, combination of these, anything. कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिलायंस आया था बिल्कुल इतना चला कि पूरा मार्केट कैप्चर कर दिया। कॉम्बिनेशन, वर्ड, स्लोगन, कुछ भी, साउंड, सेंट, कलर। बैरिस्टा के कॉफी बार्स होते हैं, एक स्पेसिफिक अरोमा कॉफी का आता है, तो सेंट ही बस है, लेकिन वो उनके अपना है। तो कुछ भी ट्रेडमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है। इट मे बी रजिस्टर्ड, मे नॉट बी रजिस्टर्ड। इसके लिए क्योंकि लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। जब भरोसा जुड़ा हुआ है तो उसमें हाँ ये जरूर है कि उसका इन्फ्रिंजमेंट अगर होगा तो चीज़ों को क्लियर करवाने में दिक्कत आती है। गोदरेज के निशान उसी टाइप से लिख के, उसी फॉन्ट में, उसी स्टाइल में GBJ लिख के कोई भी दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव मोनोपोली। अगर टाटा की कंपनी का वो लोगो भी लगा हुआ है तो सबको पता है कि वो मजबूत है। एक्सक्लूसिव मोनोपोली है टाटा की कुछ खास चीज़ों में, या मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए बोलूँ, किसी भी ट्रेडमार्क, एस्टैब्लिश्ड ट्रेडमार्क का मार्केट में मोनोपोली रहता है, और इसी मोनोपोली के कारण इट अलाउज अ बिजनेस एंटिटी टू बिल्ड पब्लिक गुडविल एंड ब्रांड रेपुटेशन। ये सब ट्रेडमार्क है। यहाँ तक कि आपका इंस्टीट्यूट, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी, लोगो है, इट इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क। कहीं पे भी थीसिस में ये लोगो भी आप लोग का यूनिवर्सिटी का लगा रहता है तो सबको पता रहता है कि ये किस जगह से थीसिस आई है। कवर पेज में लोगो बस। ना कमिंग टू ट्रेड सीक्रेट,
It is owned by a business and not by an individual. किसी बिजनेस का लोगो रहता है, किसी इंडिविजुअल, भले ही उसने इंडिविजुअल ने उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में या उस स्पेसिफिक सीक्रेट फॉर्मूला को डेवलप करने में इन्वॉल्व किया, लेकिन ट्रेड सीक्रेट हमेशा उस बिजनेस से जुड़ा रहेगा, इंडिविजुअल का नहीं, क्योंकि वो उस बिजनेस के लिए वो ट्रेड सीक्रेट, और क्योंकि वो सीक्रेसी वाली बात है, इसलिए अगर चीज़ों को गुप्त रखना है तो खर्च भी हो, ज़्यादा खर्च लगता है, महंगा पड़ता है, अनसर्टेनिटी रहती है। और ये सीक्रेसी जो है कई चीज़ों में प्रोटेक्शन देती है, आपके बिजनेस का भी एक प्रोटेक्शन का मॉडल है। इंडियन कंटेक्स्ट में एक बहुत अच्छा मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। हैदराबाद में एक वैद्य परिवार है जो कि दमे की दवाई देता है, और उस जो दवाई देते हैं वो उसका मेडिसिनल फॉर्मुलेशन क्या है ये किसी को नहीं पता। उस परिवार में कैसे दवाई बनती है ये जान के आप सब जन को, मतलब किस तरीके से इंडियन सोसाइटी में अपने ट्रेड सीक्रेट को मेंटेन किया गया है। पूरे परिवार में केवल घर की सबसे बड़ी महिला को उस दवाई का फॉर्मुलेशन पता है, और वो महिला अपने परिवार में अगली जनरेशन में केवल अपनी बड़ी बहू को वो दवाई का फॉर्मुलेशन बताती है। और ये इस स्ट्रेटजी से उन्होंने केवल अपने उस परिवार में रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि दवाई का फॉर्मुलेशन करना क्या है। ये ट्रेड सीक्रेसी का एक तरीका है। इंडियन कंटेक्स्ट में इस तरीके से चीजें चल रही हैं। Economically valuable confidential business information that is not generally known, providing competitive edge to the owners. जो भी वो करेगा इस तरह का ट्रेड सीक्रेट उसको एक कॉम्पिटिटिव एज बिजनेस में हमेशा रहेगा। Has value to those who cannot legitimately obtain it. सीक्रेट है, अगर उसको जानना है तो जिसका सीक्रेट है उसके बिजनेस में सेल लगाना, जो सीक्रेट जानता है उसको खरीदना, उसको अपने पार्टी में लेके आना, एक टफ जॉब है और कॉस्टली अफेयर है। इसमें सीक्रेसी किस तरीके की, दो तरह की इंफॉर्मेशन सीक्रेसी होती है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी होती है, कमर्शियल इंफॉर्मेशन किस तरीके से आप प्रोडक्ट का डेवलप कर रहे हैं या उसको किस तरीके से मार्केट कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, आपके कौन बिजनेस पार्टनर्स हैं, कौन सप्लायर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी आपके बिजनेस को बढ़ावा देती है। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू सेफगार्ड ट्रेड सीक्रेट? एक स्ट्रेटजी इंडियन कंटेक्स्ट में अभी मैंने बताई, उसमें कई चीजें हैं। आइडेंटिफाई करिए आप किस तरह का ट्रेड सीक्रेट है, किस तरीके से चीज़ों को आपको डील करना है, क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से आप किस किस को डिस्क्लोज कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके लिमिट्स हैं अपने। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, उसको कॉन्फिडेंशियली किस तरीके से रख सकते हैं, लीगली पेपर साइनिंग फॉर्मेलिटीज करके, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, अगर बिजनेस बढ़ाना है तो कुछ ट्रेड सीक्रेट ऐसे हैं जो आपको एम्प्लॉयज़ को बताने हो, बताया है आपने, लेकिन इसके बाद फिर उनको आपको कन्वे भी करना है कि वो आपको छोड़ के ना जाए, उसमें ब्लैकमेल होने का भी खतरा है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको आपको ट्रेड सीक्रेट में किस एक्सटेंट तक आप जा सकते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये हर बिजनेस की हर एस्पेक्ट की केस बाय केस अलग होती है। ना इसके लीगल मैकेनिज्म्स क्या है, अगर
कहीं कुछ चीज़ें ट्रेड सीक्रेट में वायलेशन हो रहा है, कैसे उसको डील किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंडियन कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक प्रोविजन है जिसमें ट्रेड सीक्रेट भी साथ में शामिल होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की क्लॉज साथ में इंक्लूडेड होनी चाहिए। दैन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, एक्शन फॉर ब्रीचिंग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मार्केटिंग, एक्शन फॉर ब्रीचिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अगर कोई ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट में भी ट्रेड सीक्रेट का कवर किया गया है कुछ एस्पेक्ट। Also enclosed in work protected by copyright, often found in software packages and testing material. Special process exists for copyright workplace for registering laptop programs that embrace trade secret. अलग-अलग तरह के सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जा रही है, किस तरीके से उसका लोकेशन कहाँ क्या चीज़ें रखी जा रही हैं, ये जब पैक हो जाती है मशीन तो पैक हो जाती है, बिल्कुल लोगों को सीक्रेट रहता है कि कहाँ पर मशीन उसके कंपोनेंट्स कहाँ पर। वो भी एक कॉपीराइट के तहत रजिस्टर होता है। कॉपीराइट के तहत रजिस्टर होने के बाद में ट्रेड सीक्रेट को भी कुछ हद तक कवर करता है। द नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड कॉन्फिडेंशियल भी सबसे कॉमन तरीका है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन के लिए कई स्ट्रिक्ट मेजर्स साथ में लगाई गई है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के उसमें जो आपके कंप्यूटर रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं उसके तहत जब चीज़ें ज़्यादा डील होने लगी मार्केट में, तो ये इस तरह के इंफ्रिंजमेंट को रोकने के लिए ये इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 लाया गया। पेनल्टीज क्या क्या है? दो ही चीज़ें हैं, या तो जेल हो जाएगी या फाइन हो जाएगा, दोनों। किस चीज़ में? मिसअप्रोप्रिएशन। अगर आपने कुछ गलत किया है तो गलत दो तरीके से होता है, इंजंक्शन एंड डैमेज। इंजंक्शन कैन बी द प्रोहिबिशन on future dissemination of knowledge within the property right and use of facility. आप आगे मतलब बिजनेस को आपने इतना ये किया कि फ्यूचर में आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ये अगर एक बार डैमेज किया है इन फ्यूचर आपको एक वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है, वो इन्वेंशन के उसमें। या कई डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस में पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। जिस एक्सटेंट की मिसअप्रोप्रिएशन है उस एक्सटेंट का उसमें पनिशमेंट, और पनिशमेंट 3 years का इम्प्रिजनमेंट भी है। पेटेंट्स मैडम ने और शुक्ला साहब ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पेटेंट को, इसलिए मैं इस चीज़ को स्किप करूँगा। लेकिन किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे पेटेंट बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो लाइफ में हम चीज़ों को फील करते हैं कि पेटेंट किस टेक्नोलॉजीज किस तरीके से यूज हो रही है। नोकिया कंपनी का शुरुआती दौर में किसने नोकिया फोन यूज किया? और जिनने नहीं यूज किया वो शुरुआती दौर वाले नहीं थे। क्योंकि नोकिया ही उस समय उसकी मोनोपोली थी। और जिस पर्सन ने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी डेवलप की वो नोकिया को उसने अप्रोच किया था, और नोकिया इस चीज को उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाया। और दूसरी बार कंपनीज एप्पल, सैमसंग और कई कंपनीज ने उस चीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, और आज
नोकिया की मोबाइल में क्या स्थिति है और बाकी कंपनी से क्या स्थिति है सबको पता है। An invention has to make sense in the world it finishes, not in the world it started. टेक्नोलॉजी पेटेंट हुई है, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है इसलिए पेटेंट हुई, लेकिन आगे चल के उस टेक्नोलॉजी का कितना यूज होगा ये प्रेजेंट सेंस में जज नहीं किया जा सकता। ये सारी टेक्नोलॉजी जो क्रिकेट में आप देखते हैं आजकल, ये सारी टेक्नोलॉजीज पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आज किस तरीके से इनने क्रिकेट के गेम को ही पूरा बदल दिया है। ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसके एप्लीकेशंस, और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। थोड़ा कॉस्टली होता है पेटेंट अप्लाई करना, इंडिविजुअली अलग फीस है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज करेंगे अलग फीस है, कई अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक कॉस्टली अफेयर है पेटेंट अप्लाई करना। और पेटेंट अप्लाई करना ही नहीं, पेटेंट के बाद फिर उसको मेंटेन करना या उसको रिन्यू करना, ये सब पूरा कॉस्टली अफेयर है। और क्योंकि कॉस्टली अफेयर है इसलिए डेफिनेटली हर टेक्नोलॉजी को पेटेंट के लिए आदमी नहीं जाता। पेटेंट के लिए आदमी तभी अप्लाई करेगा, इतनी कॉस्ट को तभी बियर करेगा जब वो ये फोर्सी करेगा कि इसका हम टेक्नोलॉजी को हम लाइसेंस करके हम उसका जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, हम वो वापस अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाए। और अब क्योंकि बिजनेस की बात है इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सब काफी नहीं है, यू नीड टू अर्न प्रॉफिट। पेटेंट्स के लिए अप्लाई करने के पहले कुछ सर्च इंजन्स हैं, उन सर्च इंजन्स में आदमी पहले सर्च कर लेना चाहिए। ये जो मैंने मेंशन किए हैं ये फ्री सर्च इंजन्स हैं, पेटेंट के कई पेड सर्च इंजन्स भी आते हैं और एक्यूरेटली वो आपको किस कंट्री में सर्च करना है, किस कंट्री के पेटेंट के लिए सर्च करना है, अप्लाइड के लिए है, ग्रांटेड के लिए है, ये सब कैटेगराइज करके वो आपको बता सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है और पेटेंट उसमें प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं। हाँ, सर्च भी एक बहुत सेफ सिस्टम से करें। अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ मुझे संजीत सर से डिस्कस करते हुए पता चली, आजकल इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप अभी मैं कल की बात बताऊँ, मैं कुछ इस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ सर्च कर रहा था अपने मोबाइल से, और मोबाइल में जो गूगल में एक लिस्ट आती है ना कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की, और मेरे पास 2-3 दिन से ये IPR इश्यूज रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन आ रही है। वो किस तरीके से, क्यों? क्योंकि डाटा हमारा कहीं ना कहीं शेयर किया जा रहा है। तो अगर आप डाटा शेयर कर रहे हैं, आप ऐसे सिस्टम से सर्च कर रहे हैं जहाँ पे डाटा आपका शेयर कर दिया जा रहा है, तो कितना सेफ है आपके पेटेंट सर्च के लिए ये भी आपको दिखता है। क्योंकि जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं उस कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए पता चला आप सिस्टम फ्लॉ के चलते, सिस्टम डिले के चलते आप तो पेटेंट नहीं अप्लाई कर पाए, लेकिन जहाँ डाटा शेयर हुआ उसमें कर दिया। और पेटेंट तो एक ऐसी चीज़ है कि इनिशियली आप अपने आपके पास अगर कोई आइडिया भी हो तो आप उस आइडिया को आप पेटेंट कर सकते, यू अप्लाई फॉर पेटेंट। और यू हैव टाइम, 6 मंथ टाइम आपको दिया जाता है कि 6 मंथ टाइम में आप उसका प्रोटोटाइप सामने जाके करिए। तो आपको पेटेंट जिस डेट को आपने अप्लाई किया है अपना आइडिया, उस डेट से आपका प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर किसी ने आइडिया को मटेरियलाइज करके अप्लाई किया है तो उसका आइडिया कंसिडर नहीं होगा। कितना
मार्केट ड्रिवन चीजें चल रही हैं, ये देखिए प्रोसेस पेटेंट एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करिए, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, क्लासिफाई किया जाएगा। अगर वो इंफॉर्मेशन जो आपने अप्लाई किया है वो एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड है, डिफेंस रिलेटेड है, तो अकॉर्डिंगली एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को और डिपार्टमेंट ऑफ DRDO को, उन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को वो रिस्पेक्टिव पेटेंट्स मूव किए जाते हैं। उनकी नो क्लियरेंस, उनके क्लियरेंस के बाद ही उस कंटेक्स्ट में आपको पेटेंट ग्रांट हो। अदरवाइज इन दोनों एस्पेक्ट पे अगर इन डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्शन आ जाएगा, डिफेंस रिलेटेड कहीं कोई दूसरा इशू है फॉर विच दिस कैन नॉट बी ग्रांटेड, पेटेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड, या एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड अगर कहीं कोई ऐसा इशू आता है तो इस एस्पेक्ट में आपका एप्लीकेशन टर्न कर देंगे। नॉट पेटेंटेबल इन एग्रीकल्चर मेथड्स एंड हॉर्टिकल्चर, these are not patented. हिंदुस्तान किसानों का देश है, किसानों पे आधारित, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसको ही अगर पेटेंट करने लगेंगे तो किसानों का क्या होगा? देन एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ मेडिसिन, कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स, कुछ ये कैटेगरीज हैं जो पेटेंटेबल नहीं है। Plants and animals in whole or any part thereof other than microorganisms. Microorganisms को पेटेंट किया जा सकता है इंडिया में, बाकी और किसी प्लांट पार्ट को या प्लांट या एनिमल किसी को ऐसा पेटेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए उसमें कुछ एस्पेक्ट्स पेटेंट के दायरे में बढ़ाए जा रहे हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पेटेंटेबल। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में जो जीन यूज हो रहा है वो जीन पेटेंटेबल इंस्पाइट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दैट प्लांट, फिर भी वो जीन पेटेंटेबल है। ये जैसे मार्केट डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है सोसाइटी में, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। अब पेटेंट या ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट कॉस्टली अफेयर है, ट्रेड सीक्रेट उससे ज़्यादा कॉस्टली। तो क्या किस तरीके से क्या डिसाइड करेंगे, ट्रेड सीक्रेट रखना है या पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है? उसके लिए कई कॉम्बिनेशन है, कई इश्यूज हैं जो देखने हैं आपको। क्या मार्केट स्टेटस है, आपका प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगी मार्केट में, ये सारी चीज़ें जब आप जज करें, देखें उसका आउटपुट कितना निकलना है, दोनों एस्पेक्ट से, पेटेंट फाइल करने से और ट्रेड सीक्रेट रखने से, तब फिर आप ये डिसाइड करें कि आपको सीक्रेसी पे जाना है या पेटेंटिंग पे जाना है। Copyrights. These are bundle of rights, automatic rights. आपने कहीं कोई पब्लिकेशन पब्लिश कर दिया कुछ, even if you do not take copyright registration, you are owner of that. Exclusive rights given to creator of original work of authorship. एक टाइम पीरियड मैडम ने बताया है, इन सारी चीज़ों में मैं कवर करूँगा। आइडियाज, कैन आइडियाज भी कॉपीराइटेड? पहले दोनों लेक्चर को सुन के आप लोगों को क्या आइडियाज कॉपीराइट किए जा सकते हैं? हाउ मेनी नो? आधा नहीं, इतना नहीं, हाँ या ना पूरा बस। तो पैटेंट कर सकते हैं तो फिर कॉपीराइट की जरूरत क्या है? मैंने तो केवल कॉपीराइट पूछा, मैंने केवल आइडियाज को जब पैटेंट कर सकते हैं
copyright. वेरी गुड. आइडियाज कैन नॉट बी कॉपीराइटेड. हाँ, आइडियाज अगर उसका कुछ कमर्शियल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, अवॉइड कंट्रोल सी कंट्रोल. थीसिस राइटिंग बहुत होता है. उसको अवॉइड करके नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. अच्छा, एक चीज बताएं, स्टूडेंट्स ने अगर थीसिस लिखी तो उसमें कॉपीराइट किसका है? भाई, अगर स्टूडेंट ने थीसिस लिखी है तो कॉपीराइट किसका है? ऑथर्स का है ना सर, जिसका कंटेंट लिया उसका होगा. स्टूडेंट एंड एडवाइजर दोनों का. आपका क्या आंसर है? जिसका मतलब कंटेंट लिया होगा. चुनाना है ही नहीं भाई. अवॉइड कंट्रोल सी कंट्रोल. कॉलेज एग्जैक्टली. दिस इज यूनिवर्सिटी का कॉपीराइट. उसमें कोई भी ऑथर, कोई भी गाइड, थीसिस अगर सबमिट हुई है तो थीसिस वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हुई है, वो यूनिवर्सिटी के कोर्स करिकुलम कंपोनेंट के पार्ट के हिसाब से सबमिट हुई है, इसलिए वो थीसिस यूनिवर्सिटी का कॉपीराइट है. हाँ, उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, पर्टिकुलरली कुछ एक क्लॉज होता है ऑथर्स प्रिविलेज. ऑथर्स प्रिविलेज है कि जो कंटेंट है उसको नॉट एग्जैक्टली एज सच अगर यूज करेंगे तो वो भी सेल्फ प्लेगरिज्म में आता है. तो एज सच उसको नहीं यूज करना है, लेकिन उसके कंटेंट को, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन पब्लिकेशंस. इंडस्ट्रियल डिजाइन मार्केट में ये सब ट्रेडमार्क के जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बातें हैं. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके बारे में भी शुक्ला साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को. एक स्पेसिफिक एरिया से जुड़ा हुआ एक टैग प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का, या हो सकता है कि उस तरीके का एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी है उस जोन में, जिसके कारण से वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसमें प्लांट में या एनिमल डेवलप हो रहा हो, या एक क्वालिटी एश्योरेंस मिल रहा हो. एक ग्रुप, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी का अगर कोई ग्रुप है, वो अगर कोई प्रोड्यूस डेवलप कर रहा है तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर्स को कवर करते हुए ये सारी चीज़ें अगर किसी एक एरिया से जुड़ती है तो वो जीआई टैग के उसमें कवर होता है. ये सारे एग्जांपल्स हैं जीआई टैग के. इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मतलब जीआई टैग मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा आईपी इशू. मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे जीआई मैप्स इंडिया के मिल अलग अलग एस्पेक्ट. आजकल के कंप्यूटर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में एक ये नया आईपी पैरामीटर है, सेमीकंडक्टर्स एंड इंटीग्रेटेड चिप्स. इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कमर्शियल वैल्यू का है. और आजकल जो इस एस्पेक्ट में, आईटी एस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पेक्ट में इन्वॉल्व फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस तरीके के आईपी प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए जाने हैं. इतनी देर तक तो बाकी की कहानी हुई. अब एग्रीकल्चर पे आते हैं. आईसीआर का ये स्टेटस है अभी तक का. प्लांट वैरायटीज का रजिस्ट्रेशन, प्लांट वैरायटी डेवलपमेंट की बात नहीं है, प्लांट वैरायटी के रजिस्ट्रेशन की बात है. 1533 पेटेंट्स, 1455 कॉपीराइट्स, 1556 पेटेंट्स, 1557 पेटेंट्स, 1558 पेटेंट्स, 1559 पेटेंट्स, 1560 पेटेंट्स, 1561 पेटेंट्स, 1562 पेटेंट्स, 1563 पेटेंट्स, 1564 पेटेंट्स, 1565 पेटेंट्स, 1566 पेटेंट्स, 1567 पेटेंट्स, 1568 पेटेंट्स, 1569 पेटेंट्स, 1570 पेटेंट्स, 1571 पेटेंट्स, 1572 पेटेंट्स, 1573 पेटेंट्स, 1574 पेटेंट्स, 1575 पेटेंट्स, 1576 पेटेंट्स, 1577 पेटेंट्स, 1578 पेटेंट्स, 1579 पेटेंट्स, 1580 पेटेंट्स, 1581 पेटेंट्स, 1582 पेटेंट्स, 1583 पेटेंट्स, 1584 पेटेंट्स, 1585 पेटेंट्स, 1586 पेटेंट्स, 1587 पेटेंट्स, 1588 पेटेंट्स, 1589 पेटेंट्स, 1590 पेटेंट्स, 1591 पेटेंट्स, 15
इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ICAR, लेकिन केवल 416 कॉपीराइट्स ही ICAR को हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 199, डिजाइन 72, और जो वैरायटीज और हाइब्रिड्स डेवलप किए हैं ICAR, उसकी लाइसेंसिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को और प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ दोज हाइब्रिड्स एंड वैरायटीज, उसकी लाइसेंसिंग जो की है वो सबसे ज़्यादा की है 3679। और ये लाइसेंसिंग वाला जो कंपोनेंट है ये सबसे लास्ट में ICAR ने टेकअप किया है, लेकिन ICAR की सबसे बड़ी पूंजी उसकी वैरायटीज और हाइब्रिड्स के अंदर है, और उस चीज़ को बहुत सीरियसली ICAR ने टेकअप किया है। बाकी और IP इश्यूज भी हैं, मैं नहीं कहता कि वो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो इंडियन माइंडसेट जो होता है वो मुझ में तो है ही है, पूरे ICAR में ये चीज़ हावी है। इस कारण से बहुत ज़्यादा इस एस्पेक्ट पे IP इशू प्रोटेक्शन पे बहुत एप्लीकेशंस नहीं फाइल हुए, क्योंकि अभी तक हम यही मानते रहे कि एग्रीकल्चर तो एक सामान्य जनमानस के लिए चीज़ है, सब जो भी इंफॉर्मेशन हो सबके साथ शेयर करनी, सबके साथ साझा करनी, सबका साथ सबका विकास। मेरा एग्रीकल्चर से संबंध है, लेकिन अब जिस तरीके से IP रीजन वर्ल्ड सिनेरियो में चेंज हो रहा है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि जो इनोवेशंस एग्रीकल्चर में हो रहे हैं उन इनोवेशंस के लिए IP प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बूस्टअप किए जाए, और ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्रीकल्चर की बात सही है, पहले तो बिल्कुल एक फ्री प्रोडक्ट था हर किसी के लिए, लेकिन जैसा सब लोगों ने पहले बताया है, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज ने ये लोगों के दिमाग में किया डाल दिया और एग्रीकल्चर में पैसा कमाने की बातें आने लगी। और पैसा कमाने की बातें इसलिए भी है क्योंकि कंपनीज का मोटो अलग, पब्लिक सेक्टर का मोटो अलग। पब्लिक सेक्टर हमेशा सर्विस ओरिएंटेड वर्क करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ओरिएंटेड प्रॉफिट जनरेशन का काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि वो फार्मर्स के लिए काम नहीं कर रहे, वो भी फार्मर्स के लिए काम कर रहा है। अगर वो काम ना करें तो हम लोगों में इतना पोटेंशियल, इतना नेटवर्क हमारा इतना नहीं है कि हम कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट जनरेशन भी साथ में इनकम। तो जब हमको उन एग्रीकल्चर कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करके काम करना है, कुछ एस्पेक्ट पे हमारा अपर हैंड है तो कुछ एस्पेक्ट पे प्राइवेट कंपनीज का है, और अगर हमको अपनी टेक्नोलॉजीज को फार्मर्स के बेनिफिट के लिए यूज करना है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप मोड में ही वर्क करना है। और अगर पार्टनरशिप मोड में वर्क करना है तो उनका जो मोटो है और हमारा मोटो अलग अलग है, इसके बावजूद भी जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको हमको यूज करना है, जिससे कि हम अल्टीमेटली जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स हैं फार्मर्स, उनके लिए हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि उन टेक्नोलॉजीज को फार्मर्स तक पहुंचाने की जरूरत है, तो इसलिए पार्टनरशिप करनी है। और अगर पार्टनरशिप करनी है तो बिना बिजनेस मोड के आज के मार्केट सिनेरियो में पॉसिबल नहीं। हमको भी उस माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होना ही है। कैसे? कुछ जो स्प्यूरियस एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को हमको बहुत स्ट्रिंजेंटली कंट्रोल करना होगा, चेक करना होगा। इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए, और मार्केट में जेन्युइन प्लेयर्स बने रहे, इसलिए ये चीजें जरूरी है। हम लोग जो अपनी वैरायटीज और हाइब्रिड्स को लाइसेंस करते हैं, उसमें लाइसेंस फीस के अलावा रॉयल्टी एक क्लॉज होता है।
उस रॉयल्टी क्लॉज में नेट सेल जितना कंपनी कर रही है उस मटीरियल का, उसमें से नेट सेल में से एक नॉमिनल परसेंटेज अमाउंट रॉयल्टी के तौर पे देना होता है। वो एमओयू जो साइन होता है उसमें क्लॉज स्पेसिफिकली मेंशन है। ये हमारे और उनके ट्रस्ट पे है कि वो जो बोल देते हैं हम उसको मान के एक्सेप्ट करें कि ठीक है आपका इतना बिजनेस हुआ, आपने इतना परसेंट हमको उतना दिया। लेकिन फिर शर्त भी होता है कि यार वो तो धंधा करने बैठे हैं, तो चीज़ों को कहीं ना कहीं तो चेक भी करना होगा हम लोग को। और चेक करना इसलिए जरूरी है कि फार्मर्स का इंटरेस्ट कहीं स्टेट पे ना है। फार्मर्स में जो टेक्नोलॉजीज जा रही हैं वो ओवर हाई प्राइसेस पे ना। ये किस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है, एप्लीकेशंस जो पेटेंट की एप्लीकेशंस कैसे फाइल हो रही है। अभी आज सुबह मैंने कहीं एक न्यूज़ पढ़ी कि 2023 में जर्मनी में नियरली 2 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल हैं और लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है इन एक्टिविटीज। लेकिन लोगों का माइंडसेट पहले क्या था ये देखिए। ये यूएस पेटेंट ऑफिस में कमिश्नर 1899 में उस समय जब पेटेंट ऑफिस के रिन्यूअल और वाली चीजें हो रही थी तो इनका एक बहुत इस समय हाईलाइट किया जाता है ये स्टेटमेंट। इनने ये कहा था एवरीथिंग दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। अब जरूरत नहीं है पेटेंट ऑफिस। और ये मैं अभी आपको जो मैंने डाटा बताया 2023 में 2 लाख एप्लीकेशंस ओनली इन जर्मनी। किस तरीके से सिनेरियो चेंज हो रहा है ये रीजन वाइज कहाँ कहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है, पेटेंट एप्लीकेशंस कहाँ के लिए ज़्यादा फाइल हो रही है। ज़्यादा फाइल हो रही है अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए, इसलिए कि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ बिजनेस ज़्यादा है। बिजनेस ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों को एप्लीकेशन फाइल करके ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल है। चाइना की बराबरी करनी है, इसमें ये देखिए चाइना सबसे ऊपर है। जो बीच में उतार चढ़ाव दिख रहा है उधर कोने में तो कोविड पीरियड है बस। अदरवाइज चाइना किस पेस से मूव कर रहा है पेटेंट एप्लीकेशंस पर। और इंडिया ये यहाँ पे ये दिख रहा है। हंसिए नहीं महाराज लोग, आप ही लोग से उम्मीद है क्योंकि चाइना से बहुत पीछे करना है, सबको करना है, लेकिन कहाँ गैप है, कितना गैप है, क्या करना है आप लोग को ये देखिए। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बाकी दुनिया किनारे हैं, चाइना सबसे ज़्यादा। कितने एग्रेसिव माइंडसेट से, कितने मार्केट को कैप्चर करने के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ट्रेडमार्क 53.97% अकेला उसी का है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ के लिए ज़्यादा ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल हुए हैं। चाइना के कंटेक्स्ट में देखिए तो एग्रीकल्चर, बिजनेस सर्विसेज, क्लोथिंग। इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हेल्थ में फाइल हो रही है, सेकेंड एग्रीकल्चर, थर्ड क्लोथिंग।
अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग आता है। ये आप वर्ल्ड IPO ऑफिस में अगर सर्च करेंगे तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये भी उसी के कंटेक्स्ट में था। Nearly 65% of trademark filing worldwide is concentrated on 5 offices. 2021 का डाटा है 5 ऑफिसेस में 65% एप्लीकेशंस हैं और उस 65% में हम केवल 2.7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कैसे चीज़ें ग्रो हुई हैं, एप्लीकेशंस कितनी फाइल हो रही है ज़्यादा, ये 2017 से 22 तक का 21 तक का इंफॉर्मेशन है। हर एस्पेक्ट में, चाहे आप देखें डिज़ाइन में, पेटेंट में, ट्रेडमार्क में, हर एस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन, सर्कल जो है वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन को डिपेंड कर रहा है। ब्लू वन इज 21 एंड ऑरेंज वन इज 2017। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन कितना टारगेटेड अप्रोच है, कितनी पेस है, कितनी सीरियसनेस है, उस चीज को ध्यान देना चाहिए। फिर से वही एप्लीकेशंस कितनी फाइल हुई, कितनी ग्रांट हुई, कितनी डिस्पोज ऑफ हुई, यहाँ पे ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। देखिए ये पिंक वाला जो लाइन है ये ग्रांटेड का है, ये डिस्पोज ऑफ का है। तो वी नीड टू बी सीरियस कि क्या हम एग्जैक्टली फाइल कर रहे हैं। And if we are confident, definitely we should take it and aggressively pursue it. ये एक समरी शीट है, मुझे लगता है कि सर स्लाइड्स विल बी हियर, प्लीज कैन यू शेयर विद ऑल ऑफ देम। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करने के पीछे मैं बता चुका हूँ, वैलिडिटी के हिसाब से कितना वैलिड, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड है, इसका ये है। कमिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी के फार्मर्स रहता है, कैसे हम वैरायटीज और हाइब्रिड्स जो हमारा मेन एसेट है उसको हम कैसे करते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हुए उन डेवलपमेंट्स के कारण बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो निकल के अब सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से अब हमारे पास इम्प्रूव्ड मटेरियल है। सीक्वेंसिंग, मुझे लगता है कि संजीत सर ने आफ्टर PhD सीक्वेंसिंग के बारे में सुना होगा। और आज के डेट में सीक्वेंसिंग के चार्जेस इतने रिड्यूस हो गए हैं कि इजीली हो जाता है, क्योंकि चीज़ें इतनी इकोनॉमिकल हो गई हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अवेलेबल है। इसलिए डेफिनेटली हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स अच्छे अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि हम ट्रैक कर पा रहे हैं, हम ट्रेस कर पा रहे हैं, हम उसमें क्या एक हिडन पोटेंशियल है उसको हम अभी देख पा रहे हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करा के उसके सीक्वेंस को असेस करें। इसलिए इन सारे इंफॉर्मेशन के साथ में अपने जेनेटिक मटेरियल पे, अपने प्रोडक्ट्स को, वैराइटीज, हाइब्रिड्स को प्रोटेक्शन करना जरूरी है। और इंडिया में एक अलग तरह का सिस्टम अपने हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया हुआ, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप किया हुआ सिस्टम PPFR है, जिसमें कि हम प्लांट वैराइटीज और फार्मर्स राइट्स दोनों को प्रोटेक्शन देते हैं। अभी प्लांट वैराइटीज का प्रोटेक्शन अलग क्यों है? क्योंकि हियर वी प्रोटेक्ट
पॉपुलेशन मतलब सिंगल प्लांट। प्लांट वैरायटी भी अगर है तो हमको उसकी 10 टेस्टिंग करना है। एक लार्ज स्केल पे लगाने के बाद में इट शुड परफॉर्म यूनिफॉर्मली। सो वी स्टडी पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन यहाँ स्टडी करते हैं, बाकी जगह पे पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं, वो इंडिविजुअलिस्टिक रजिस्ट्रेशन। We have many of our materials which are coming from pre-existing plants, जिसको हम EDVs कहते हैं, essentially derived varieties। ये सारे concepts जो हैं, ये हमको अपने सिस्टम को एक अलग बनाने के लिए जरूरी थे, और इसके कारण हम लोगों ने एक अपना अलग PPFRA सिस्टम बनाया, and it is really different from others. Why PVP? Plant variety protection, I have already explained. Essentially derived varieties अभी मैंने बताया, pre-existing varieties से एक किसी मेजर ट्रेड के लिए डिफरेंट हो, लेकिन बाकी बैकग्राउंड ओरिजिनल वैरायटी का है, जो हम जनरली क्रॉस ब्रीडिंग मेथड में परफॉर्म करके डेवलप करते हैं। लेकिन आजकल एडवांसमेंट इन जीनोमिक्स, ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट है। इसमें फार्मर्स राइट्स का प्रोटेक्शन है, प्रॉमिसिंग जर्मप्लाज्म का रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉमिसिंग जर्मप्लाज्म के रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास एक अलग सिस्टम है, जो कि यूनिक जर्मप्लाज्म ट्रेड रजिस्टर करते हैं, MBPGR। और PPFRA अथॉरिटी जो है, ये वैराइटीज और हाइब्रिड्स का रजिस्ट्रेशन। नाउ अल्टीमेटली क्या, कमर्शियलाइजेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने से भी ऐसा लगता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भी फीस लगती है। रजिस्ट्रेशन की फीस लगनी है, प्लस साथ में एनुअल मेंटेनेंस लगता है। जब इतना पैसा लगेगा और अगर आप अपनी उस वैरायटी को कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो बर्डन किस पे जाएगा? अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स पे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो अगर उसको लगेगा कि ये कमर्शियलाइज नहीं होगा, तो वो सोचेंगे नहीं अभी अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इस चीज़ में करती है। और आजकल जो डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, इस डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के कारण जरूरी है कि हमारा जो मटीरियल है, हमारा जो वैरायटी है, जिससे हम जो सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन डिराइव की है, उसको हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को और दूसरे लोग कई और तरीके से यूज़ करेंगे। प्लांट ब्रीडर्स राइट, उसके लिए वैरायटी का जो प्रोटेक्शन है, उसमें आपको लॉयल्टी देखनी है, जो टेस्टिंग होती है, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी, क्रॉस वेरिएशन। टर्म पीरियड फॉर वाइन्स एंड ट्रीज इट्स 18 years. Initially it's for 9 years and then extended for 9 years. And for extended fresh varieties it's 15 years. Initially for 6 years and then extended for 9 years. अभी तक 161 क्रॉप्स के लिए 3,527 वैराइटीज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नाउ फार्मर्स राइट, क्या होता है फार्मर्स राइट? बताइए भाई, क्या होता है फार्मर्स राइट? क्या समझते हैं आपने फार्मर्स राइट से भाई? नहीं, आप बैठिए, और भी लोग बोलेंगे। बोलिए बोलिए। बोलो बोलो, क्या बोलो भाई। मतलब सही से पता नहीं है, बट
सर जैसे ब्रीडर्स तो फील्ड में मतलब जस्ट विजुलाइज करने के लिए जाते हैं कि मतलब एक्चुअल वर्क हुआ है कि नहीं हुआ, फिर मतलब ब्रीड करने के लिए, आई मीन सिर्फ इमेंस्ट्रुएशन पॉलिनेशन, बट एक्चुअल वर्क जो फार्मेसी करते हैं जैसे लेबर का वर्क है और जो भी मतलब पूरा ट्रायल फील्ड कम्प्लीटली है, तो आपके फील्ड में जो भी लेबर्स वर्क कर रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन भी आपके वर्क कर रहे हैं एज फार्मर भी। तो सर उनको मतलब ऐसा उनको ही ट्रायल अल्टीमेटली उनको ही देते हैं ना सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। फार्मर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है वो आपके इंस्टीट्यूशनल वर्क है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है। उसमें चाहे आपके डीसी काम करें, चाहे आप काम करें, चाहे आपका एक डेली पेड लेबर काम करें, इट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वो फार्मेसी नहीं है। फार्मर्स राइट इस जो हमारा बीपी फारे हैं उसमें अलग अलग तरह से फार्मर्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इस एक्ट में फार्मर्स को एज कंज्यूमर आइडेंटिफाई किया गया है, एज वैरायटी डेवलपर आइडेंटिफाई किया गया है, एज जर्मप्लाज्म कंजर्वेटर आइडेंटिफाई किया गया है। और इन सारी चीज़ों के लिए उसको उसके जो वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करने का प्रोविजन, तो क्योंकि वो कर रहा है इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करना है। और ये सारे साथ में उसमें अगर आप कहीं कोई उसका यूज़ किया हुआ मटेरियल, उसका डेवलप किया हुआ मटेरियल, उसका कंजर्व किया हुआ मटेरियल अगर आप अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो उस ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी आपको उसको शेयर देना है, जो उसका कमर्शियल बेनिफिट होगा उसमें से वो बेनिफिट शेयरिंग साथ में करेंगे। और बेनिफिट शेयरिंग तो करनी है साथ में, जब आप मटेरियल उससे कलेक्ट करेंगे फार्मर से तो आपको डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन कि आप क्या उसका यूज करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप डिस्क्लोज कुछ और करें और उसका यूज कुछ और करें। इस चीज में जो कंसर्न ब्रीडर है, अगर फार्मर ने कंप्लेन कर दी तो कंसर्न ब्रीडर इस चीज में मुसीबत में सकता है। बस 5 मिनट्स। So these are the salient features of BPFRA. इसमें बिल्डर्स राइट कवर है, फार्मर्स राइट कवर है, रिसर्चर्स राइट कवर है, कम्युनिटी राइट्स हैं, जीन फंड है, जीन फंड जनरेट किया जाता है वैरायटी रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू, और इन फंड्स को यूज किया जाता है फार्मर्स के प्रमोशन के लिए, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, उनको अवॉर्ड करने के लिए। और भी सारे प्रोविजन हैं इसमें। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जो ये प्रोविजन है इसको मैं जरूर बताना चाहूँगा कि अगर कोई वैरायटी लाइसेंस कर दी जाती है, डेवलप होती है, रजिस्टर होती है और लाइसेंस कर दी जाती है किसी कंपनी को, और वो स्पेसिफिक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में सीड देने में सक्षम नहीं है, या हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई रिड्यूस करके प्राइस एनहांस करना चाहती है, तो इस तरह के बिजनेस टैक्टिक्स को चेक करने के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग का सिस्टम यूज में है। अगर इस तरह की कंप्लेंट आई तो फार्मर के हित के लिए अथॉरिटी उस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करके और दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दे देती है, इससे कि मार्केट में सफिशिएंट सीड का फ्लो और प्राइस रिड्यूस हो सके। ये सारे कुछ क्रॉप्स हैं जो कि जिसमें BPFRA रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो डिटेल्स हैं। नाउ coming to a few basic things of IPR management. How to manage it? Why to manage it? Because you have invested in this capital. So there should be return from that investment. Then you have your share market. इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने IPRs को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे? विजुअलाइज इंटेलेक्चुअल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समझिए उसको, प्रायोरिटाइज करिए, स्ट्रेटजी डेवलप करिए, एंड देन सफिशिएंटली सेफगार्ड योर आइडियाज। ये जो मैंने बताया कि प्राइवेट का मोटो और पब्लिक का मोटो, पब्लिक सेक्टर का मोटो बिल्कुल अलग अलग है। मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है
और मोस्ट ओरिजिनल लेक्चर पे पब्लिक सेक्रेटरी करता है, और इस कारण से हम दोनों के वर्किंग स्ट्रेटजी में डिफरेंस आता है। बट anyhow we need to work in hand in gloves। चीज़ों को हमको उनके साथ ही करना है अपनी अल्टीमेट स्टेक होल्डर्स की बेनिफिट के लिए। ये एक साइकिल है, हाउ product gets exploited and then development of new product is there, then again product registration, you own an IP and then you go for IP protection, and then after it gets protected, again that IP product is exploited for market benefit. Coming to few important things for students, करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस एस्पेक्ट में। गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें पेटेंट एंड डिज़ाइन एग्जामिनर, ट्रेडमार्क एंड जीआई एग्जामिनर, ये दोनों अलग अलग ऑफिसेज हैं। पेटेंट एंड डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग ऑफिसेज हैं, कॉपीराइट के लिए अलग ऑफिस है। तो ये सारे इसमें ऑफिसेज हैं। एग्जामिनर जो एप्लीकेशन आती है उनको एग्जामिन करने के लिए एग्जामिनर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आप इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकते हैं। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद अगर आप IP इशूज़ रिलेटेड लॉ की चीज़ों में एक्सपर्टाइज दे देते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस इस चीज़ में बहुत हाई रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्रोफेशनल्स को आजकल हायर कर रहे हैं। IP इश्यूज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ऐसे पेटेंट अटॉर्नीज, पेटेंट एजेंट्स, ट्रेडमार्क एजेंट्स, ये सारी अलग अलग कैपेसिटी में रिक्रूट करते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं प्लस आप में इस तरीके के एक्सपर्टाइज है, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स में जॉब ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे आपको। Now, coming to my last slide, only 5% of people think, 10% of people think that they think, and other 85% would rather die than think. बाहर में भी नहीं टाइट ले दिमाग में। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस टॉप 5% के लोगों में जगह बना सकें। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for your nice and wonderful presentation and informative, valuable information. Now, I would like to invite Dr. Professor Sanjay Singh, sir. Sir is the chairman of the IPR cell of our university, and you will be glad to hear that sir has more than 24 years of experiences from the different renowned regional, national, and international centers. Earlier, sir was worked in World Vegetable Research Center, and he was also associated with the Indian Institute of Vegetable Research with the Professor Dr. Shailesh Tiwari, sir. Thank you, sir. Once again, I would like to invite you. Okay, so I will take how much time I should take? 10 minutes? Then it won't take 30 minutes. So, anyway,
Okay, so I will not take much more than say 20 minutes. In fact, my job has been used by Dr. Sele. I wanted to now give you, I will recapture what we have discussed and put it in my form. If you see these two photographs, this talks about seed innovation, which we are moving with, especially in the field of plant breeding and AI. We move very fast, science moves very fast, and science society and मैं कहता हूँ सरहद भी बहुत जल्दी मूव करती है। किसी भी एक कंट्री का अगर सरहद देखो अगर सही मायने में तो हर एक 15-20 साल पे बदलता है। अमेरिका ही क्यों ना, उनको किसी न किसी स्टेट को फ्रीडम देना पड़ता है, कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ती है। हिंदुस्तान का केस है और मोस्टली पोस्ट WTO में बात करूँगा, पोस्ट WTO इन द सेंस आफ्टर 1995 when many of you must have not born, हम से बहुत लोग थे। और जब ये WTO की बात चल रही थी तो जैसे आज मैडम ने कहा कि ये किसान सुसाइड कर रहे हैं और इसी तरह की बात हुई थी। कंप्यूटर का भी बात आया, जब कंप्यूटर आने लगा तो लोग उस टाइम में इसी तरह बोलते थे जैसे आज AI के लिए बोल रहे हैं कि नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ होता नहीं। कंट्री के बॉर्डर्स चेंज होते हैं, पावर चेंज होते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, जियोपॉलिटिक्स चेंज होता है और बिजनेस उसी से चलता है। डॉक्टर सेलेस ने बहुत क्लियरली कहा कि एशिया और अफ्रीका में ज्यादा पेटेंट हो रहे हैं और मैं और जूम इन कर देता हूँ। सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बांग्लादेश, दो सबसे बड़े, पाकिस्तान यहाँ पे मार्केट है, चाइना, 4 सबसे बड़े मार्केट। अफ्रीका में अगर आप कल बिजनेस करना चाहते हो, ट्रेड और सर्विस करना चाहते हो तो नाइजीरिया को रखो खाली, वो एक ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसे ही एक दो, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, बड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि पेटेंट जो है वो कमर्शियल, अभी आपको ज्यादा एंगल दिख रहा है तो एक चीज तो पक्का है, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव भी केवल 2 ही है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, व्हाई IPR इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन लाइक दिस? क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, टैक्स पेयर्स मनी है, तो पैसा कहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके कारण काफी बोल दिए गए हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट है। तो कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी है, UGC, ICR और सब चीज ये कहती है। और बेसिकली ये इसलिए है कि यूनिवर्सिटी लाइक दिस जहाँ पे स्टूडेंट्स निकल के जाते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी माइंडसेट के लिए एंट्री पॉइंट है। व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू एजुकेट इन व्हिचएवर फील्ड यू आर गोइंग टू जॉइन। आप सर्विस सेक्टर में जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। एंटरप्रेन्योर्स और सोशल एंटरप्रेन्योर्स में थोड़ा सा फर्क है। तो बिजनेस की बात सेलेस कह रहे थे, प्योर बिजनेस लोग एंटरप्रेन्योर्स की तरह, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सी सब्सिडी देती है, जैसे इंस्टीट्यूशन को सब्सिडी है। हम लोग सब्सिडी क्यों देती है गवर्नमेंट? क्योंकि किसानों को हेल्प करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, इसलिए सब्सिडी मिलता है। और आज की यूनिवर्सिटी का सब्सिडी बहुत ही कम होता है, किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देती है। तो मैं वो चीज ध्यान दिला रहा था कि ये हो जाएगा तो 1995, 93, 94 हम लोग NSC में थे, दंगल आ जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि दंगल वाज द पर्सन हु प्रपोज गैट एग्रीमेंट। आपका नाम सुना है कोई आदमी? क्या कब शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसमें झगड़ा वगड़ा करने के बाद जब सब सामने से बैठे थे, कहेंगे अब झगड़ा तो खत्म हो गया, पैसा वैसा बनाया जाए, तो ट्रेड कैसे करोगे? तो 1948 में गैट एग्रीमेंट हुआ।
और वो आगे नेगोशिएशन उनके अपने बोर्ड्स की मीटिंग होते हैं और चलते चलते इंडिया in fact was the first one who realized that agriculture has to be discussed in the GATT. एग्रीकल्चर 1996 उरुग्वे राउंड से पहले कभी डिस्कस ही नहीं किया उन्होंने एग्रीकल्चर, उसमें पैसा नहीं था और इंडिया कहता था एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और तब इंडिया के प्रेशर से ही GATT उरुग्वे राउंड में फर्स्ट टाइम डंकन ने प्रपोजल रखा कि इसको डिस्कस करना चाहिए और 1995 में 1995 में इंडिया जो है WTO को साइन किया और जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कुछ साइन करते हैं तो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं और उसी का अच्छा उस टाइम तक आपके पास न PPPR एक्ट था न GI एक्ट था, हम तैयार नहीं थे, हम हल्ला जरूर कर रहे थे कि एक्ट इसको डिस्कस करो लेकिन कोई एक्ट नहीं था। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बिल को अगर आप देखो तो ये भी झगड़ा से शुरू हुआ ब्रिटिश और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटिश और वो जो ब्रिटिश मतलब स्कॉटिश कंपनी और फ्रांस जो आपस में झगड़ा चल रहा था उसकी वजह से उन्होंने शैम्पेन जो है एक जगह है फ्रांस में डिस्ट्रिक्ट रीजन जहाँ पे अंगूर होती है, तो उन्होंने कहा कि भाई शैम्पेन पे मैं ये लॉ लगाऊंगा, तो स्कॉट वालों ने ग्लासगो में एक रीजन है जहाँ पे स्कॉट बनती है, कहा कि मैं ये लॉ लगाऊंगा। बिजनेस इंटरेस्ट से GI एक्ट बना, तो हम लोग 1999 में लाए GI बिल बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन की 1995 में हमको ऑब्लिगेशन था ये सब लॉ बनाना है। तो PPPR एक्ट 2002 में पास हुआ। इनफैक्ट हम लोग उस टाइम में साइंटिस्ट थे तो हम लोग रिव्यू भी करते थे, डस्ट टेस्टिंग उसका था उस टाइम में। मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि र्यूमर से भागना चाहिए आदमी हमेशा। कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, आप क्या सोच रहे हो, आपके पास कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर नौकरी ले जाएगा, AI नौकरी ले जाएगा, कोई किसी का कुछ नहीं ले जाता। और सुबह में भी कहा गया कि हम लोग तो देते आए हैं और फैक्ट है नॉलेज अभी भी IPR रिजीम में भी आप नॉलेज, मैं एग्जाम्पल आपको एक बता देता हूँ चलिए अपने लाइफ से। एक प्रोफेसर जो स्टेज पे होते हैं आदमी लिखता है ना, तो हम कहीं भी यार एक फेलोशिप के लिए लिखते हैं, CGI का कोई फेलोशिप था तो एक प्रोफेसर था उसको लिखा, ही वाज वेरी नाइस, मैं उसको अपना प्रोजेक्ट बना के दिया संजीव मे बी ही वाज वेरी नाइस, मे बी संजीव सम keywords we have to put in so that FAO and other people can like that, you know। वो शब्द बना के भेज दिए, कुछ नहीं वो तो मिला नहीं। 1-1.5 साल के बाद प्रोफेसर का मेरे पास वो आया एक ड्राफ्ट रिसर्च पेपर का कि संजीव मैं अकेले किया है काम, किसी को इन्वॉल्व नहीं किया हूँ क्योंकि आइडिया तुम्हारा था, आई वांट टू बी ऑन दिस पेपर एंड इट वाज इट इज इन हॉट साइज इन पेपर। पॉल बोसवेल उसका आदमी का नाम है, रिटायर्ड है, और मैं तुम्हारा नाम डालना था। मैं डर गया, तो मैं कुछ किया नहीं, मैं कैसे नाम ले लूँ, तो मैंने पोलाइटली मैं भी कहा कि नो इट वोंट बी एक्सेप्टेड फॉर मी एंड आल्सो आई विल हैव कंस्ट्रेंट टू ज्वाइन यू इन दिस पेपर बिकॉज़ आई एम नॉट कंटिन्यू इंटेलेक्चुअली आई कंटिन्यू। खत्म हो गया वो पेपर भी। F2 को कैसे आप यूज करते हैं वो अलग है। हम फिर सब ICR का कोई फेलोशिप था तो मैंने कहा यार वो आदमी ठीक लग रहा मुझे, उसी के यहाँ हमको जाना चाहिए, उससे वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फुल ब्राइट फेलोशिप में आप लोग कितने लोग थे ना, उन्होंने बार यही कहा कि सही लोगों को चुनो जहाँ आपको जाना है। दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ। और फिर मैं उसको लिखा कि भाई होस्टिंग ले लो, तो मैं कहा कितना पैसा चाहिए आपको होस्टिंग के लिए, $2000 चाहिए। कहने संजीत अगर मान लो $2000 नहीं भी देते तो मुझे फर्स्ट लैपटॉप को गिफ्ट किया वहाँ जाने के बाद, उस टाइम में लैपटॉप होता नहीं था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डू एनीथिंग एथिकली, दूसरे से नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका बहुत क्लियर, इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो। पैसा बना, पैसा जरूरी है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है आजकल FPO जो है वो सब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत पैसे हैं, स्टार्टअप में बहुत पैसे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी कहा एंटरप्रेन्योरशिप मैं देख रहा हूँ 2016 में इन्होंने पूरा फैसिलिटेशन सेल्स खोल रखे हैं IPR के। तो आई सी अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगर जनरेशन। हमको पता नहीं होता है बहुत सा चीज, और मुझे भी नहीं पता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इस पे अब जो उपभोग जो है इसका वेबसाइट में दिया हुआ है इंटरनेशनल और फॉर द फैकल्टी मेंबर्स। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में आप
को कंसल्टेंसी और इस तरह का जॉब्स ऑफर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी एंड इस तरह के जॉब्स ऑफर्स होते रहते हैं। ब्रीडर्स राइट, रिसर्चर्स राइट, ये जो पीपीवीआर एक्ट है, सो पीपीवीआर एक्ट जो है वो 2002 से एक्ट हम लोग बिल पढ़े, जो बिल पास हो जाता है उसको एक्ट बोलते हैं। तो इसमें बहुत एक्सक्लूसिव राइट है। उस टाइम में मैं भी जैसे अभी आप लोग को आगाह कर रहा हूँ, हम लोग भी करते यार ऑफिशियल काम है, एक्स्ट्रा बर्डन होता था ना, कोई डस्ट टेस्टिंग भी करना है, वो समझेगी जाए यहाँ पे भी कोई काम आईपीआर से कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है ना, लेकिन करना है तो करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना। तो उस टाइम में हम लोग कहते थे यार इतना टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, डस्ट टेस्टिंग का प्रोजेक्ट का पैसा भी खत्म करना है और बनाना भी है। मुझे आइडिया नहीं था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन एनालिस्ट साइंटिस्ट की इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका होने जा रहा है कि आप फिर अथॉरिटी बनी पीपीपीआर अथॉरिटी, एंड इट्स ह्यूज। सुप्रीम कोर्ट भी इसके डिसीजन को नहीं टाल सकता, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी इसके डिसीजन को नहीं टाल सकता है पीपीपीआर अथॉरिटी को, क्योंकि उस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा सुई जनरल सिस्टम बोलते हैं, हमारा जो सिस्टम है पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए यूनिक है। जो पीपीपीआर एक्ट है पूरे डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, वो लोग भी तो धीरे धीरे आएंगे ना, तो इंडिया तो थोड़ा सा आगे रहेंगे, वेस्ट साउथ में मतलब अफ्रीका में अदर कंट्रीज उनको भी आना। तो इस रीजन सिस्टम एडवोकेट के टर्म में अपनी तरह का अलग का सिस्टम है। इसमें ब्रीडर्स का राइट है, रिसर्चर्स का राइट तो है ही, ये इंस्पायर्ड है सब कुकुर से, जो पहले से इंटरनेशनल ब्रीडिंग लॉ यूरोप में चलती है। फार्मर्स का राइट में हाईलाइट कर दिया, देखिए फार्मर्स can have save, use, sow, resow, exchange, share or sell his farm produce, including seed of variety protected under। तो मैं उस टाइम में जब कर रहा था तो एक चीज मैं शेयर करता हूँ कि मैं कहा कोई सीड कंपनी जो है वो तो इसमें प्रोटेक्ट करेगी नहीं, क्योंकि फार्मर्स को अगर क्रॉप उसका फेल हो जाता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। और अभी भी जितने भी सीड कंपनियां डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी स्मार्ट ब्रीडर है वो इस लॉस से भागना चाहेगा, वो क्या करता है, ट्रेड सीक्रेट, टू पेरेंटल लाइंस का ट्रेड सीक्रेट है, उसको ट्रेड सीक्रेट बना के रखो, हाइब्रिड बनाओ, हर एक साल बेचो। ये कंपलसरी नहीं है फार्मर्स का खरीदना, मतलब खरीदना, लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट बहुत सी कंपनियां अभी भी यूज करती है। कोको कोला दुनिया का सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, कोको कोला, स्टिल दे यूज ट्रेड सीक्रेट। लेकिन ट्रेड सीक्रेट कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है आपको, वो खाली आपको पोसेशन देता है। अगर किसी ने चुरा लिया तो आप उसको सू नहीं कर सकते, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ज्यादातर बिजनेस अभी भी ट्रेड सीक्रेट और म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलता है। लॉ पे एक फॉर्मल बाइंडिंग दे देता है, कहीं डिस्प्यूट होगा तो प्रॉब्लम। मैडम बोली कि वो पेप्सी को उसको गारंटी पेटेंट गारंटी देने के बाद फिर वापस ले लिया गया, तो झगड़ा नहीं करते तो नहीं वापस लिया जाता। मैं आगे चलाई नहीं दिखा केस स्टडी इतनी वैरायटी डॉक्टर साहब ने बात। हमारे आईपीआर से हम लोग का मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि लोग आगे लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे हमारा वैरायटी इसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं, जो यहाँ से रिलीज हुई है उसके लिए कंप्लायंस है। डॉक्टर साहब ने गाइडलाइंस पूरा किया है, इंडियन लॉज क्या है जिसके थ्रू हम लोग प्रायोरिटी वाइज एक दो क्रॉप को वो कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, जो चीज को करते हैं। केस एग्जांपल मैं ऑलरेडी साइड किया कि पेप्सी को जो है वो पेप्सी की कंपनी है, पोटैटो ब्रीडर्स हायर करती है यूएसए में, जो उनके लिए लेस के लिए स्पेसिफिक वैरायटी बनाएगी जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। 5% लेस मॉइस्चर है तो लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन चिप्स बनाने के लिए जाते हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। 0.2% ऑयल रिकवरी से मस्टर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। उन्होंने वो वैरायटी बनाई FC5 और FL2027 के नाम से है वैरायटी। तो 2016 में इन्होंने पीपीपीआर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्होंने 2016 से थोड़ा सा पहले रजिस्ट्रेशन करवा के और फार्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोग जानते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कोई कंपनी वाले कोई भी आदमी साइन कर लिया और फार्मर ने इस एक्ट में एक फार्मर है और फार्मर्स का मतलब ब्रीडर्स भी है, डॉक्टर साहब ने कहा कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स भी हो सकता है। एक ऐसा नहीं है कि एक ही फार्मर होगा। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की किसके साथ, गुजरात में फार्मर्स के साथ, और उनसे बायबैक कर लेते थे। तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है कि फार्मर्स का अगर प्रॉब्लम आप समझो तो वही है, प्राइस उनको ठीक से नहीं मिल पाता, जो छोटे फार्मर्स तो प्राइस तो फिक्स हो रहा है।
फिर क्या दिक्कत होगी कि कुछ फार्मर्स उसमें जो थे वो आलू दूसरे को डायरेक्ट मार्केट में बेचने लगे, और कहीं ना कहीं कुछ इनके बीच बिजनेस को लेके अनबन हुआ। तब इन्होंने ये क्या की, पेप्सी accused some of the farmer by violating the rule. रूल जो वायलेट हुआ, तो ये 2019 में इन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपया ये फार्मर्स लोग देगा। अब सुन, जो गरीब फार्मर्स कहाँ से लाए, क्योंकि ये पीवीपीआर एक्ट बना हुआ था, तो कोई एक्टिविस्ट थी वो फार्मर्स भी आप इस लॉ में बहुत क्लियर है कि फार्मर्स के लिए अगर कोई लड़का उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक्ट करने के लिए, फाइल करने के लिए काफी प्रोविजन है, बहुत सेफ गार्ड से बनाया गया है। इसलिए इस लॉ का बहुत ही डेवलपिंग कंट्री लोग प्रेज करते हैं। फिर उन्होंने कविता, ये है नाम है इनका, इन्होंने पीपीपीआर अथॉरिटी पे कहा कि ये तो फार्मर्स के साथ जाती है, और फिर टाइम लगता है 12-13 महीना। उन्होंने पूरा कलेक्ट इकट्ठा किया, डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया, और क्लियरली कहा कि हम जो लाइसेंस दिए थे आपको उसको हम रिवोक करते हैं। रिवोक इसलिए करते हैं कि आप बहुत से इंफॉर्मेशन हमसे छिपाए हैं पहले, और बहुत से इंफॉर्मेशन, और ये उनके वकील जो है बहुत क्लियरली कही, वो अगर प्रोड्यूस अपना बेच रहा है मार्केट में, तो ये तो पीवीपीआर लॉ अलाउ करता है फार्मर्स को, तो आप कैसे यूज कर रहे हो। और उसके बाद ये स्टेटमेंट है, डायरेक्टली आप उनके वेबसाइट से ले सकते हैं, सब केस का स्टेटमेंट उनको वेबसाइट पे देना पड़ता है। तो वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ले जाएगा वो ले जाएगा, वैसा चीज नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है। और इन्होंने कहा कि उल्टा आपकी लोग फार्मर्स पे केस किए, उन पे केस किए हैं पेप्सिको पे, कि फार्मर्स को आपने हरासमेंट किया। इमेजिन करो अगर ये लॉ नहीं होता, उस टाइम हम कहते यार ये पेपर वर्क है कुछ नहीं है, तो क्या फार्मर्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाते? कोर्ट तो कहता कि भाई दो पैसा, क्योंकि उनको आप प्रोटेक्ट, पावर ऑफ लॉ और गवर्नमेंट का ही ये होता है। और इस तरह के हजारों केस पीवीपीआर जो है डील करते हैं। उनके वेबसाइट पे मैं देख रहा था, काफी केस वो लोग डील करते हैं। और लास्ट में ये देखिए, ये स्लाइड में हमेशा हाईलाइट अभी कर रहा हूँ पहली बार, जितने भी पीले मार्क्स हैं ये इंडिया से रिलेटेड, और साइंस इतना तेज भागता है, आपको समझना चाहिए कि जैसे मस्टर्ड में या इसमें जीन एडिटिंग का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया इज गोइंग टू अलाउ। इंडिया ह्यूज मार्केट, आप ये समझिए, ह्यूज मार्केट नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल। और आईपी मैं शुरू में पता नहीं बोला नहीं, आईपी आप सब सब लोग हैं, कोई ऐसा हवा का चीज नहीं होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट माइंड। तो जो जितनी भी पेटेंट है इसके अंदर जीन एडिटिंग के अंदर, वो सब पिक्चर्स में आते हैं। और जितने भी इंडियन सीड इंडस्ट्री है वो उसको लाइसेंस करते हैं, तो हम लोग अपना भी बना रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अच्छा, हम लोग का रोल जो हम बता रहे हैं यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करने का एक वर्कशॉप था। आगे हम लोग आईपीआर सेल से हेल्प करेंगे कि कैसे पेटेंट हो, कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होना है ना। और इतने होने के बाद मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि आप ये समझिए कि आपको बहुत ये सब जिसको इंटरेस्ट हो वो सब पढ़ सकते हैं। सारी वेबसाइट पे आप जाइए, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट हो, चाहे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वेबसाइट जिनेवा में है वो हो, या वो का वेबसाइट वो भी जिनेवा में बेस्ड है, वहाँ पे आप विजिट कीजिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। और टेक अवे मैसेज हमारा यही है, मैं क्या समय चलिए नेक्स्ट पे और आप लोग क्वेश्चन में कुछ पूछना। एक चीज मैं इसे पढ़ने से लेता हूँ, प्राची तुम लोगों का फोटो, इसको मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये किस चीज का फोटो है मालूम है? जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है, गूगल कर क्या ना, इतना ही कुछ इसलिए तो बंद हो गया। जितना ठीक है
बंद किया, मैंने नहीं किया। अब मैं क्लू देता हूँ, वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला एंजाइम है, उसका फोटो है। और लास्ट में जो फोटो था वो था फार्मर्स फील्ड पे किसी का। तो मैं कह रहा हूँ एज एन एग्रीकल्चर पर्सन आपको मॉलिक्यूल का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए जितना उस फार्मर्स की नीड्स का है। आप जाते हैं तो बात कीजिए, आपको सीखने को मिलेगा। मैं यंग साइंस जब ज्वाइन किया था तो सब वेजिटेबल में ज्वाइन किया, राइस पे पीएचडी किया, तो सबसे ज्यादा जाके पापा को बोला कि चावा टोमेटो लगाइए। नो व्हाट इज से एट दैट टाइम ब्रेक इवन कॉस्ट जो था वो 2 रुपये था। ब्रेक इवन कॉस्ट समझते हैं आप? हाँ, जितना कॉस्ट लगा है उतना ब्रेक इवन कॉस्ट टोमेटो प्रोडक्शन का 2 रुपये था। गुड फार्मर। तो उन्होंने कहा कि देख मेरा टमाटर को 2 रुपया खरीदने के लिए किसी को तैयार करवा लो, वो 1.5 रुपया था, 2 रुपया खरीदवाने के लिए तैयार करवाओ, मैं प्रोड्यूस कर दूंगा जितना टमाटो चाहिए। आई कुड नॉट एबल टू प्रोड्यूस टोमेटो नाउ। उनकी प्रॉब्लम, अगर उनकी प्रॉब्लम इसलिए समझना जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ मार्केट 7 अपने यहाँ 50-60% फार्मर जो है स्मॉल होल्डर्स हैं, और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर में ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि बहुत से हैं उनके पास जमीन भी नहीं है जो अपना मेहनत करके उससे खेती करते हैं। और सीड का मार्केट वहीं से आएगा फ्यूचर में। तो जितनी भी बड़ी सीड कंपनी है इम्पैक्ट बाद में देख के ही कोई चीज करो। मैंने कहा इंटेंशन बिजनेस ही करना है तो आप देखो कि आप कितना सीड वहाँ पे बेच सकते हो, कौन कौन मार्केट में आपका कंपटीशन दे सकता है, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मल्टीनेशनल ऐसा कुछ नहीं होता है, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। क्योंकि आपने 93 के बाद अलाउ किया, हम लोग तो भीख मांगने के करा करते थे 93 में। वन डिसीजन मेड की ओपन करो नहीं तो मर जाओगे, इसलिए जिंदा है। कभी गवर्नमेंट को पैसा आना, बहुत पैसा आता है, गवर्नमेंट बहुत मांगती है, राइट? अदरवाइज पीपल जस्ट यहाँ तक बंद था 93 में। तो मार्केट, वो मार्केट पहले से आर्टिकुलेट करते मार्केट। रिसर्च में भी मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ और करूँगा भी कि बिना मतलब का कोई चीज ना करें। थीसिस तो कर लेंगे आप, लेकिन अच्छा थीसिस करो ना, छोटा करो, अच्छा करो, देख के करो। ऑफ कोर्स डिग्री लेना इम्पोर्टेंट है, टाइम पे डिग्री लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उससे कुछ उस मेहनत से कुछ अच्छा चीज निकलता है तो कुछ ज्यादा बेटर है। और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आप लगे रहिए और मस्त रहिए। Thank you, sir. Thank you for your informative lectures. I assure you, the student who has participated in this event, they will be surely benefited with your lectures. Thank you one again, sir. Now it's time to concluding remarks. During the first technical session, Professor Dr. Sudhir Shukla, who is a professor from the RML University, who has given the lecture on biodiversity and role of intellectual property rights. Sir, one sir, please stop, sir. वो फैसिलिटेशन है थोड़ा सा बैठे। And our second guest speaker was Dr. Shakuntala Sangam madam, who is not coming over here due to some work of engagements. She went to the Lucknow. So I am also thankful to the man who has enlightened our students with their knowledge on IPR. And in our second technical session, Dr. Shailesh Tiwari sir has covered the lecture on and different issues on IPRs related to the copyright, trademarks, trade secrets and difficulties and issues and challenges of the IPRs. So thank you so much, sir. So your lectures will be surely benefited to our students. And our fourth lecture was given by the Professor Siddharth Sandhi sir, who is the chairman of the University of IPRs. So sir has covered the international scenario related to the global intellectual property rights and agricultural innovations. Through his lecture, we have learned a lot of things, what he has done earlier in his research related to innovation and IPR. So, sir, now it's time to facilitation. Sir, I would like to request Dr. Vivek Singh sir to facilitate our Professor Sanjay Singh sir with the bouquet.
Now I would like to request Dr. Dhananjay Upadhyay sir to facilitate our guest speaker, Dr. Sailen Tiwari sir, with bouquet and certificate. In last but not the least, I am thankful to you, everyone, each and everyone who has participated today. And especially our faculty members, our committee members, my dearest student, MSc and PhD scholar, especially Indresh, Himanshi Bipin, and Rahul, Vinod, everything. Thank you so much to make this event successful. Thank you. आप लोग के लिए रिफ्रेशमेंट है स्टूडेंट, आप बैठे नहीं आएगा, बाहर न जाए, बस आप लोग बड़ा बेहतर हो गई सीट हो गई है। सर एक ग्रुप फोटो होनी है सर, शैलेश तिवारी सर एक ग्रुप फोटो होनी है सर, एक ग्रुप फोटो। फैकल्टी मेंबर हर्षिता मैम जसवाल बाहर सर एक बैनर के साथ आप लोग यहीं बैठे हैं स्टूडेंट, आप लोग को आ रहा है ठीक है। यार अच्छा लगा कितने हाँ